for this course because just a minute. Yeah, we are having total 160 participant. Mostly more than 100 will be joining in the lecture. That's sure. That's from my side. So sometimes it may not be possible for me to entertain your doubts in the lecture because this 1 hour I want to utilize for the explain the concepts and to make it comfortable you people. Okay. So sometimes it may happen ki I will not entertain your doubts. So what I'll be doing is that I'll be forming one group on a WhatsApp, so there you can ask. Okay. So if I do not entertain your doubt in a lecture, so don't feel bad, you can ask it over WhatsApp. Okay, fine. Yeah, so that's one thing. Another thing is that for this course I will try to make it like मतलब थोड़ा not एकदम प्रोफेशनल वाला, थोड़ा सा friendly kind of thing, so that you will understand the concept clearly. And here actually we do not have any exams and all, so I will not go definition wise, I will go funda wise, so that you can understand the terms and what are the regulations are there in stock market easily. Okay. And for this course mostly I'll be using Himlish as a language. Himlish means Hindi, Marathi, English, so that you can enjoy this particular course and you won't be feeling like कौन सी तो ऐसा प्रोफेशनल कोर्स नहीं तो ऐसे लेक्चर्स में बैठे, ठीक है, so that you can enjoy. And yeah, one more key, you have to practice it because though it is of 20 years, what I will be doing is that yes, I will make you practice in this session itself. So most of the time is I will try to make like miss out of that 20 lectures at least uh, 20 to 40% part of it, this particular course I will try to keep it for practice session. Means actually I want you to practice in share market, do the trading, online trading, how to do that, everything I will be explaining later. Okay, and so that I can clear your doubts, so there you will be getting a more knowledge. Fine. So that's some rules or some regulations for this course. Okay, now let's start. I think recording start. Yeah, someone has started. Very good. Yeah, fine. Now, first of all, some of you, not everyone. Just tell me, why did you enroll for this course? What's your motto behind it? Yes, anyone just can raise your hand. Then I will ask that particular guy to unmute and you can speak up. Now tell me, why did you join this course? Yes, Jen, please unmute yourself and say. Sayam. So basically, this course is very diverse, and actually, now we can see that the market is very open for everyone. Basically, for youth and I mean like all the people, and Yeah. and basically, so it gives us a vast knowledge about what happens in the country and how it like it develops our economics and GDP basically like that. Okay, fine. Yes, Atharva Dubey. Why did you join this course? What was the motto? सर अभी कोविड के टाइम पे पूरा मार्केट गिरा पड़ा था, मतलब सबको लगा था कि क्या बोलते मार्केट एकदम क्रैश हो गया हाँ, बट उसके बाद ये साल में मतलब जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खत्म हुआ, जो मार्केट ने पिकअप किया है, तो तब से देख के लग रहा है कि इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो डबल ही कर दिया। डबल, हाँ डबल ही कर, 25 दिन में पैसा डबल। वेरी गुड। ठीक है, Powdual something. Excuse me if I not pronounce it properly. Yeah. Yes, tell me your view to join this particular course. Sir, financial stability, like invest करते रहना है like पूरी जिंदगी में, ताकि we are stable later on as well. Okay, yeah. So that must be your first goal. I mean, it's not कि हाँ I want to know regarding the share market and all. अरे share market लोग आएंगे क्यों? पैसा कमाना first aim. ठीक है, I want to know regarding money. ठीक है. So that should be your first aim कि मतलब yes, I want to do the financial planning and I want to enjoy the financial freedom. I will show you that everything practically. Don't worry, that you will understand and you will enjoy also. ठीक है. So what I will say to you is that whatever your intention for this course, or someone might have said to you कि यार must course है कर ले वगैरह, otherwise you want to just know regarding the finance or the share market, is fine, but mainly just keep your aim like कि मतलब I want to be a financial, मतलब I want to enjoy the financial freedom. ठीक है. And why I have just wrote this course, because in engineering you will be learning many technical courses and I also learn some मतलब many technical courses. ठीक है. But just from last year I thought कि यार
people are just giving the technical knowledge, but no one is talking regarding the financial, and that is also equally important. Okay, it is, I will say, it's more important than technical subjects. Okay, and no one is talking about that. So that's why I thought ki yes, yeah, engineers should also know regarding the finance. Okay, not only the MBA people and all, we should also know. But that is also equally important. That money matters to everyone, whoever it is. Okay, it matters to everyone. Okay, so that's why I floated this course. And yeah, one more thing is that why I floated at this stage, because why I want second year to learn people from the second year itself, not from this last year. Because yes, this is what you must know at the early stage. Because this is what the mistake which I have done. I don't want you people to do, because I just started the share market just 2-3 years back, just 2-3 years back. Before that, I was like zero in share market. I was not knowing anything regarding the share market. Okay, so I just started 2-3 years back, and then I realized the power if I would have started when I just completed my engineering. Okay, then अगर मैंने engineering खत्म हुआ तब start किया था तो really I would have enjoyed that financial freedom right now itself. Okay, so I don't want this to happen with you all people, so that's why I just floated this course as secondary research, so that now you will get the knowledge. Okay, and you will get some time for practicing. Without practicing, please do not enter in share market. Okay, so you will have some handsome amount of time in your hand, or 1 or 2 years to practice it. How to practice that also I will tell you. And then you can, once you get your accuracy like 70%, and once you get like, yes, now my pick are going right, then you can put yourself in an actual stock market. Getting it? So that's why I've just floated it second year itself. And in 2 years, yes, you can ask me the doubts and all, and you can just prepare yourself. Fine. Now let's start with the lecture. Yeah, so before starting with the stock market and all, first of all, let me discuss something with you people. And before that, let me share my screen. Is my board visible to you? Is it visible, guys? Yes, sir. Yes. Yes. Yeah, fine. Okay. Now the first important thing. Now these are the 2 lectures. I will just invest on this one only. Getting it? For financial planning, because this is very, very, very important. Financial planning in our life. Most of the people do not don't do this financial properly, and at the end, like they just they might be earning handsome amount of money per month, but yes, as they do not have this proper planning, so कुछ तो problem हो जाता है. ठीक है, so financial planning is very, 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 very important in everyone's life. Getting it? Okay, so we will just talk regarding it. Yeah, financial planning. Now, what do you mean by this financial planning? Anyone? What to do? Financial. Whenever I say financial planning, करना क्या है boss? Yes. I will just come to you people. We can invest money. Invest money, fine. Anyone else? Financial planning मतलब क्या चीज है? We have to make a plan for how we manage our finances, income, outcome. Sorry, Chintan? So we make a plan for how to manage the money we have and how to make more money. Okay, fine. Normally just do one thing, just raise your hand and say तो मजा आएगा. ठीक है? यार शिखरे, तन्मय शिखरे. Yes, sir. It basically means to manage our money, our expenditure, savings, investment, and plan accordingly. It's majorly like some chain. Like you manage your savings, you manage your financial investments, you manage your monthly expenditure according to your earnings and all. अच्छा, okay. Yes, जादव, हर्षल जादव. सर फंड्स के हिसाब से प्लान करना और पैसे बचाना. परफेक्ट. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है पता है? मतलब व्हाटएवर, मतलब जो भी मंथली हम इनकम कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली मींस हाउ मच आई शुड स्पेंड, देन हाउ मच आई शुड सेव, देन हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट, एंड व्हाट आर माय गोल्स, मतलब व्हाट आई वांट टू अचीव आफ्टर सो एंड सो इयर्स. ठीक है, तो उसके लिए कैसे प्लानिंग करना चाहिए? मतलब इफ आई वांट टू जस्ट बाय सम होम और बाय सम कार, और आई वांट टू एंजॉय सम लग्जरी एंड ऑल, सो इन दैट केस हाउ टू प्लान फॉर दैट? सो फॉर दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. Are you getting it? Okay. Now let's see what are the basic things that you have to do in a financial planning before doing this one. Okay. So try to understand. I'm not going in detail, but just giving you the idea. मतलब क्या क्या होना जरूरी है. That is important. ये होना ही चाहिए. उसके बाद जो मांगता है कर, but ये तो मांगता ही है. ठीक है. First thing is that try to understand. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं. ठीक है, पहला चीज क्या करने का, जब जैसे आप जॉब पे लग गए,
ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट आपका जो भी सेविंग अकाउंट है, ठीक है, इन दैट सेविंग अकाउंट, इन द सेविंग अकाउंट, ठीक है, आपको क्या करना है, मतलब व्हाट एवर योर मंथली इनकम इज, जो भी मंथली इनकम है, into 6 जो भी आपका मंथली इनकम रहेगा, लेट्स सपोज 50,000 इफ आई जस्ट अज्यूम रफली, ठीक है, सो 50,000 into 6 मतलब अराउंड 3 लाख मेरे सेविंग बैंक के अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। समझो ये सब क्यों है बाद में समझेगा आपको, बट समझो मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ये होना चाहिए अपना, ठीक है। देख क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी मैं इनकम आता है मेरा, जितना भी इनकम आता है मेरा, ठीक है, into 6 करो, ठीक है, एंड जो भी अमाउंट आएगा उतना मेरा सेविंग बैंक में पड़ा होना ही चाहिए। कभी भी मैं सेविंग बैंक अकाउंट खोलूं मेरे को उतना अमाउंट मिलना चाहिए। Why? Because I am saying this one, because this is what I realized in this pandemic situations. लोगों के जॉब गए मतलब दे हैव नॉट डन दिस प्लानिंग अकाउंट, तो खाली तो जॉब गया मतलब क्या सैलरी आना बंद, तो यार जीना मुश्किल हो गया था, ठीक है। सो एटलीस्ट डू वन थिंग कि मतलब जो भी तुम्हारा इनकम है into 6 उतना तो कम से कम सेविंग बैंक में होना चाहिए। मतलब क्या, अगर जॉब गया तो तेरे पास में कम से कम 6 मंथ तो 6 मंथ तो है टू स्टार्ट विद अ न्यू जॉब और टू सर्च फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी है, ठीक है। सो व्हाई आई एम सेइंग 6 मंथ का मतलब व्हाई आई एम सेइंग दैट इनकम इनटू 6 बिकॉज़ इफ इट इज मतलब 3 लाख अगर आपके अकाउंट में है, सो दो इट इज फॉर द 6 मंथ, जो भी दो इज द सैलरी ऑफ द 6 मंथ, एटलीस्ट मतलब अगर वर्स्ट केस में तो आप 12 मंथ तक तो चला ही सकते हो। समझ में आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो जो भी आपका इनकम है इनटू 6 उतना आपके सेविंग बैंक के अकाउंट में होना ही चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर इन केस जॉब वगैरह कुछ चला गया, so you must have some buffer time, मतलब टेंशन नहीं होना चाहिए आप क्या करूं करके, you must have some buffer time to think on that and to search for some job and all, ठीक है। so 6 month time period is fine, and जो भी आता है पूरा का पूरा अपन खर्चा नहीं करते, जो भी इनकम है पूरा का पूरा खर्चा नहीं होता है, ठीक है। सो मतलब जो 6 मंथ का जो ने सैलरी बचा के रखा सेविंग अकाउंट में, एटलीस्ट वो 12 मंथ तो तेरे को पूरे गए, मतलब एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव विद दैट, गेटिंग इट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई से कि जो भी इनकम है इनटू 6 दैट मच अमाउंट एटलीस्ट यू हैव टू जस्ट पुट इट इन बैंक अकाउंट, मतलब वो सेविंग बैंक में होना ही चाहिए, उसको टच ही नहीं करने का, उसको कभी मतलब उसका जो भी अपना सेविंग बैंक का बैलेंस है इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए, इतना तो होना ही होना है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का तो क्या करना, दिस इज द फर्स्ट थिंग, जो भी मतलब आपका इनकम है इनटू 6 दैट मच यू हैव टू जस्ट कीप इट इन योर सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट मेडिक्लेम, आपका पूरे फैमिली का मेडिक्लेम कराओ अराउंड मतलब 5 लाख टू 10 लाख। वन सेकंड, दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस पेंडेमिक, ठीक है। मेडिक्लेम होना जरूरी है बॉस, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज मेडिकल इमरजेंसी भी कांट से कब आएगा, एंड जब आएगा ना यार लोगों को लूट ले लेता है पूरा, बिकॉज यू माइट हैव सीन इन दिस कोविड, मतलब कितना बिल बना हॉस्पिटल्स का वगैरह, एंड सोचा जिस बंदे के पास पैसा नहीं रहेगा उस पर क्या बीती होगी। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो मेडिक्लेम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो आपका जो भी फैमिली उसको जस्ट मेडिकली इंश्योर कर दो, ठीक है। सो मेडिक्लेम अराउंड 5 to 10 लाख इज फाइन, तो हर एक मेंबर का 5 to 10 लाख का मेडिक्लेम होना ही चाहिए, एंड दैट कॉस्ट मतलब इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता उसका, ठीक है। इफ यू टेक मेडिक्लेम ऑफ स्टार हेल्थ और एनी व्हाट अदर मेडिक्लेम कंपनीज आर, तो इतना ज्यादा नहीं खर्चा, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज आपका ईयरली समथिंग अराउंड 40,000 वगैरह जाएगा, ठीक है, वो जाने दे, गया तेल लेने कुछ वादा नहीं है, अगर 40,000 मेरा फोकट भी गया ना तो भी चलेगा, बट इनकेस अगर इमरजेंसी आएगा ना तो यही तेरे को बचाने वाला है। Are you getting it? ठीक है। So mediclaim is very 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 important because medical emergency कब आए और वो कितना लूटेगी तेरे को पता नहीं होता अपने को। Are you getting it? So in that case मतलब you must be prepared. ठीक है, तो अपने ये अमाउंट का हाथ नहीं लगना चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज हुआ क्या कोविड में बच्चा मतलब जो भी लोगों ने सेविंग किया था सब खर्चा हो गया मेडिकल में, एंड दिस शुड नॉट हैपन, सो फॉर दैट मेडिक्लेम मस्ट बी देयर। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज लोगों ने जो बचा के रखा था, जो सेविंग करके रखा था, सब मैंने देखा है, मतलब यार आपने भी देखा होगा, सब वो हॉस्पिटल में चला गया, ठीक है। तो डोंट लेट दिस टू हैपन, ठीक है। तो मेडिक्लेम अच्छा खासा माना तेरे को, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर नीड 5 लाख to 10 लाख तो होना ही चाहिए हर एक इंडिविजुअल पर्सन का, आपके जो भी घर में, गेटिंग इट, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज दैट इफ नाउ दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस थर्ड व्हिच आई एम सेइंग, थर्ड थिंग इज दैट दिस इज व्हाट टर्म इंश्योरेंस एक चीज रहता है, ठीक है। एनीवन नोस रिगार्डिंग दिस टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? मेडिक्लेम तो पता रहेगा, टर्म इंश्योरेंस पता है क्या होता है? Anyone having idea? You can just raise your hand, I will just ask you to unmute. Term insurance, yes Harshal. So basically term plans रहता है जिसमें we invest a few money and get returns. अच्छा, गेट नॉर्मली मैं सजेस्ट करेगा गेट रिटर्न वाला कभी मत लो, मतलब उस पर कुछ रिटर्न वगैरह, मतलब अपना इंडियन उनका टेंडेंसी कैसे रहता है, मतलब जो अपने पीपल है कि मैं कुछ पैसा डाला ना कुछ तो आना चाहिए,
कीप इन माइंड ये मेडिक्लेम का वगैरह जो भी आप पैसा डाल रहे हो ना, ये टर्म इंश्योरेंस का आपका फोकट जाने वाला है। अगर तू मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, अगर तेरे को कुछ नहीं हुआ तो फोकट जाने, बट जाने दो, इट जस्ट सेफर साइड, मतलब कुछ हुआ ना यही बेहतर तेरे को हेल्प करे, समझो, ठीक है। बस 40,000 मतलब व्हाट इज द पेमेंट यू मेक फॉर दिस मेडिक्लेम एंड ऑल, अगर वो ईयर में अगर आपको मतलब लेट्स सपोज मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो वो पैसा तेरा फोकट है। बट अच्छा है ना यार, मतलब दो फोकट का मतलब अगर इमरजेंसी आती तो वो तेरे को हेल्प करता था। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। सो मतलब डोंट थिंक कि मतलब इससे मुझे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, डोंट एवर थिंक फॉर दैट। तो उसके प्रीमियम भी बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली गो फॉर नॉन रिटर्न वाला थिंग, क्यों समझेगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। सो नॉन रिटर्न वाला मेडिक्लेम मिलेगा, उस पर ही ऊपर जाओ। आई गेट इट। नॉर्मली कुछ कुछ मतलब कंपनीज रहती है, हाँ आप इतना भरो आपको इतना मेडिक्लेम मिलेगा, इतना आपको मंथली ऐसा अमाउंट आएगा। डोंट गो फॉर दैट, डोंट गो फॉर दैट, लिटरली डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। जस्ट गो फॉर दोज हु आर लाइक मतलब दे आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग टू यू, आई गेट इट, अनटिल जस्ट दैट क्लेम अमाउंट बस, ठीक है। देन उसके बाद टर्म इंश्योरेंस चीज क्या है, जस्ट लाइक नाउ लेट्स सपोज वो टर्म इंश्योरेंस ये किसके लिए, जो भी इंसान कमा रहा है घर में, मतलब जिसके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंडेंट है, तो उसको ये निकालना चाहिए। मेडिक्लेम हर एक मेंबर के लिए होना चाहिए घर के, ठीक है। एंड टर्म इंश्योरेंस जो भी इंसान है जो भी कमा रहा है यस उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज क्या टर्म इंश्योरेंस मतलब होता क्या है, ठीक है। वंस अगेन डू नॉट गो फॉर, तो कुछ तो रिटर्न आएगा करके, उसका फिर प्रीमियम भी बहुत जाता है, जाने दे, पैसा गया ना ये चलेगा, ये अगर गया ना पैसा खुश होने का, क्योंकि अगर ये गया पैसा तो तेरे को कुछ मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तू फिट है, और अगर ये गया तो तू गया नहीं है, तू जिंदा है, समझो, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस चीज क्या होती है, जस्ट लाइक कि टर्म इंश्योरेंस कैसे होता है, मतलब इफ अगर अगर खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, अगर मुझे कुछ हो गया, ठीक है, आई विल जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ माइन, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम द वन हु इज एक्चुअली मतलब गोइंग टू द जॉब एंड माय एंटायर फैमिली इज डिपेंडिंग ऑन मी, ठीक है, मैं अकेला कमाता हूँ घर में, ठीक है। एंड अगर गलती से मुझे कुछ हो गया, मेरी लाइफ को कुछ डेंजर हो गया, लेट्स सपोज मैं एक्सपायर हो गया, तो मेरी फैमिली क्या करेगी, आई गेटिंग इट, ठीक है। सो टर्म इंश्योरेंस क्या रहता है, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको कुछ होता है, ठीक है, तो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट, देयर विल बी सर्टेन अमाउंट, ठीक है, जो आपके फैमिली को दिया जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मली आई सजेस्ट मतलब टर्म इंश्योरेंस के लिए भी मतलब नियरली जस्ट टेक इट ऑफ 1 CR to 2 CR, मतलब उतना सफिशिएंट है, अभी गेटिंग इट, ठीक है। अब ये भी कैसे निकालते हैं, ये जस्ट लाइक मतलब आपका जो भी मंथली इनकम है, लेट्स सपोज मेरा 50,000 मंथली इनकम है, ठीक है। सो टर्म इंश्योरेंस ऐसा निकालो, ठीक है, कि व्हाट आर द अमाउंट दैट विल बी गेटिंग दैट योर फैमिली विल बी गेटिंग, अगर उसने अगर बैंक में भी डाल दिया जस्ट फॉर द FD और समथिंग, ठीक है, तो कम से कम तेरा जो मंथली इनकम आता था वो निकले, आर यू गेटिंग इट, समझो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट डिपेंडिंग अपॉन योर मंथली इनकम यू हैव टू जस्ट डिसाइड कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना है, ठीक है। वाई टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज अगर गलती से तुझे कुछ हो गया तो फैमिली को देखने वाला कोई नहीं, बिकॉज जो भी रिलेटिव्स वगैरह रहेगा कुछ दिन के लिए सिंपैथी देंगे, खत्म, पैसा देने वाला कोई नहीं रहता गाइस, कॉन्स्टेंटली देने वाला कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को ही कुछ तो बंदोबस्त करके जाना है, ठीक है, ठीक है। सो टर्म इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो इसका अमाउंट कैसे डिफाइन करने, एज आई टोल्ड कि मतलब जो भी आपका मंथली आता है इनकम वो फिर से आने लगे, मतलब अगर वो जो भी अमाउंट है, अगर जो भी तुम्हारे फैमिली वाले अगर दे डू नॉट नो द फाइनेंस, अगर उन्होंने बैंक में भी जस्ट डाल दिया फॉर द FD और फॉर अ मंथली इनकम, तो उतना आना चाहिए, ठीक है। सो टर्म इंश्योरेंस रफली 1 CR to 2 CR इतना तो करके ही रखो, ठीक है, ठीक है। तो दिस आर द 3 मैंडेटरी थिंग्स, इतना तो आपको करना ही है, वंस अगेन, ठीक है। पहला सेविंग बैंक के अकाउंट में आपका जो भी इनकम है इंटू 6 उतना पैसा पड़ा होना ही चाहिए, कुछ भी कर, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेडिकल मेडिक्लेम ये होना ही चाहिए, बिकॉज मेडिकल इमरजेंसी कब आएगी पता नहीं, अपन बोलते हैं मेरे को कुछ होने वाला नहीं होगा ना, कुछ बोल नहीं सकते भाई, आई यू गेटिंग इट, ठीक है। बिकॉज अभी मतलब इफ यू सी द मेडिकल केसेस यार, मतलब यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आने चालू हो गया, डायबिटीज चालू हो गया, क्या क्या चालू हो गया, आई यू गेटिंग इट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जस्ट एंश्योर योर फैमिली इज मेडिकली इंश्योर्ड वन, गेटिंग इट, ठीक है। तो मेडिक्लेम इज कंपल्सरी, तो जस्ट मेक इट अराउंड 5 to 10 लाख, बिकॉज उतना खर्चा तो आता ही है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड, योर कंफर्ट के साथ, बट 5 to 10 लाख तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंड देन टर्म इंश्योरेंस, जो भी आदमी कमा रहा है उसका टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए, गेटिंग इट, ठीक है। दैट डिपेंडिंग ऑन आपका मंथली इनकम कितना है, वो बाद में आपको फैमिली को आना चाहिए, उसके हिसाब से प्लान करो, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो नॉर्मली कैसा भी ले सपोज इफ आई से कि 1 लाख के लिए मुझे 500 रुपीज मिल रहा है, 1 लाख के लिए इफ आई एम गेटिंग 500 रुपीज, 500 रुपीज पर मंथ, ठीक है। सो मतलब दिस इज व्हाट अ नॉर्मल कैलकुलेशन, 1 लाख के लिए 500 मिल रहा है, तो उसके हिसाब से 50K के लिए कितना चाहिए, उतने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस आपको निकालना है, ठीक है। सो इफ अराउंड योर मतलब 2 CR वगैरह डाल के रखे आपने, तो मंथली 1 लाख तक आ जाएगा, आई गेटिंग इट, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान फॉर द टर्म इंश्योरेंस, 1 CR अगर रखोगे तो मंथली 50,000 आ जाएगा, गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो आपको करना ही है, व्हाटएवर द वो बाद में, अभी तक ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने अभी तक इन्वेस्टिंग कुछ चालू ही नहीं किया है,
ये इन्वेस्ट करने के पहले ये कर, अगर ये नहीं किया ना तेरा इन्वेस्ट कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट अभी तक अपन ने कुछ किया ही नहीं है। दिस इज व्हाट सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा, दिस इज व्हाट मेडिक्लेम के लिए मैंने कुछ किया, दिस इज व्हाट टर्म इंश्योरेंस की है। ठीक है, इन्वेस्ट एज सच मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, बट इन्वेस्ट करने के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तूने नहीं किया ना, जब फटका पड़ेगा ना तो फिर संभाल नहीं पाएगा। Getting it? ठीक है, so for that sake do one thing, मतलब these are the three things that are important. This is what I always ask to anyone. If someone asks me for the financial planning, पहले बोलता पहले ये चीज कर, उसके बाद वो सेविंग वगैरह जिधर भी तेरे को करना है ना इन्वेस्ट बाद में कर, पहले ये चीज कर। ठीक है, तो वंस अगेन सेविंग अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, इनकम इनटू 6 होना ही चाहिए। देन मेडिक्लेम डिपेंडिंग ऑन योर नीड, बट 5 to 10 लाख तो होना ही चाहिए, बिकॉज आजकल मेडिकल के खर्चे इतने बड़े और हॉस्पिटल्स इतना लुटते हैं कि इतना बिल हो ही जाता है। ठीक है, तो इट शुड बी अराउंड 5 to 10 लाख एंड टर्म इंश्योरेंस 1 to 2 CR डिपेंडिंग ऑन आपका इनकम कितना है। ठीक है, तो फिर ये होना चाहिए आपको। फाइन, अब ये होने के बाद अगर तेरे को कुछ पैसा बचता है तब तू इन्वेस्ट का थिंक कर, देन यू हैव टू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अभी इन्वेस्ट करने के लिए नाउ टू इन्वेस्ट देयर आर मेनी वेज। नाउ फॉर इन्वेस्टिंग there are many options. Can anyone just suggest which are the different options for the investing? Yes, please come up. Just raise your hand and you can just answer. Invest करने के different तरीके बोलो. Yes, भिंडे. Sir, mutual funds and share market and different Okay. FDs. Okay, FD. Then Chintan Shukla. So property and gold. Yeah, property and gold, very good. Then someone who has Shubham. I don't know. Sir, share market, gold, property. Yeah, this are the things. Okay, fine. So at least you know मतलब क्या क्या इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, so इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस एक्चुअली तेरा बहुत सारे। ठीक है, पहला मैंने बोला कि सेविंग अकाउंट में रख, बिकॉज सेविंग अकाउंट में भी कुछ तो 4% नहीं तो कुछ एनुअली मिलता है अपने को। ठीक है, दिस इज वन। सेकंड, आई एम जस्ट लिस्टिंग सम द व्हिच आर पॉपुलर वन। ठीक है, देन यू कैन गो फॉर एफडी। ठीक है, नाउ डू यू नो एफडी का इंटरेस्ट सेविंग बैंक के अकाउंट में तो 4% के ऊपर नहीं मिलता अभी। ठीक है, सेविंग अकाउंट पे जो भी आपका पैसा है, जो भी इंटरेस्ट आता है 4% के ऊपर नहीं मिलता। ठीक है, एफडी का इंटरेस्ट पता है कितना मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट? एनीवन हैविंग आइडिया? नाउडेज एफडी का इंटरेस्ट earlier before 10 years and all it was about 10% 9%, but अभी कितना है पता है एफडी का इंटरेस्ट? 6-7%। या 6 to 7%। वो भी तूने अगर कौन सा प्राइवेट बैंक में अगर डाला तो, अगर गवर्नमेंट मतलब नेशनलाइज्ड बैंक में अगर डाला तो इससे भी कम है, 5% पे भी नहीं है, मतलब एसबीआई वगैरह। ठीक है, देन उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ एनपीएस, दिस इज आल्सो द गुड वन। ठीक है, उसके बाद इफ यू वांट यू कैन थिंक ऑफ पीपीएफ। आई विल जस्ट टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस वन इफ आई गेट अ टाइम, अदरवाइज आई विल गिव यू सम सोर्स, बिकॉज एनपीएस पीपीएफ ये भी एक इंपॉर्टेंट मतलब है, अच्छा खासा है। एनपीएस एज ए नेशनल पेंशन स्कीम वो अराउंड 8 to 10% का रिटर्न देते हैं। पीपीएफ या अपना प्रोविडेंट फंड वाला ये भी अराउंड 8 to 10% का रिटर्न देते हैं। ठीक है, देन इफ यू वांट यू मे जस्ट गो फॉर गोल्ड और प्रॉपर्टी वगैरह सब, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो भी आता है दैट इज म्यूचुअल फंड, एंड लास्ट में अपना आता है शेयर मार्केट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस आर द वेरियस ऑप्शंस आर देयर एक्चुअली, मतलब जो भी तेरा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ने दे उस पे भी कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलते जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इफ यू वांट समथिंग थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा मोर, देन गो फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट, यू विल गेट अराउंड 6 to 7%। ये भी बहुत ज्यादा बोलते हैं मैंने, 5% के अराउंड ही होता है अभी। ठीक है, इफ यू वांट मोर देन गो फॉर एनपीएस। कीप इन माइंड, अभी इसमें कैसे पता है, जैसे जैसे आगे जाओगे ना थोड़ा थोड़ा रिस्क भी बढ़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा रिस्क बढ़ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक्चुअली आई विल से इधर तक तो मतलब इधर तक तो रिस्क है ही नहीं, मतलब इट्स जस्ट लाइक इतना रिस्क नहीं है। ठीक है, हाँ, बट इधर से आगे रिस्क बढ़ते जाते हैं। आई गेटिंग इट? ठीक है, सो एज आई टोल्ड कि सेविंग अकाउंट 4% तक मिलेगा, एफडी 6 to 7% तक मिलेगा, एनपीएस एंड पीपीएफ दे विल गिव अराउंड 8 to 10%। ठीक है, हाँ, गोल्ड वेरिएबल है बट 12% के अराउंड तो एप्रिसिएशन होता है। इफ आई जस्ट टेक एवरेज फ्रॉम सेंटर्स लिस्टेड तो फिर 12% के अराउंड, 12% के ऊपर ये, बट मैं 12% पकड़ के चल रहा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी वगैरह यस 10 to 15% वगैरह के रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, एंड स्टॉक मार्केट इसमें रिटर्न का कुछ बोल ही नहीं सकते, मतलब अगर इफ यू आर नॉट ट्रेंड ना तो फिर मतलब यू मे डू द लॉस आल्सो, बिकॉज स्टॉक मार्केट इफ यू सी ना जितने भी पीपल स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, उसमें से 50% से भी ज्यादा लोगों ने लॉस ही किया होगा, गारंटी है 50% से भी ज्यादा लोगों ने लॉस किया होगा, बिकॉज दे डू नॉट डू प्रॉपर स्टडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है, मैं बोलता है सट्टा,
ठीक है, अगर तेरे को कुछ आता नहीं और तू ऐसे ही डाल रहा है ना पैसा, तूने अगर स्टडी नहीं किया, पक्का सट्टा है और तेरा पैसा डूबेगा, लिख के ले मेरे से, ठीक है। हाँ, बट इफ यू डू द प्रॉपर स्टडी ना, स्टॉक मार्केट जैसा चीज नहीं है। Are you getting it? ठीक है, इफ यू डू नॉट नो रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, कोई तो बोल रहा है स्टॉक मार्केट इतना कमाया उतना कमाया, अरे पेंडेमिक में इतना था, अभी इतना हो गया, अब इन्वेस्ट कर, अब हिम्मत है तो अब ये टाइम पे इन्वेस्ट कर जब स्टॉक मार्केट पूरा पिक पे, पूरा डूबेगा तू। गेटिंग इट? ठीक है, सो जस्ट डू नॉट लिसन टू समवन कि यार ये बोल रहा है करके मैं कर रहा है ना। अगर तेरे को नहीं आता ना, प्लीज जस्ट बी अवे फ्रॉम स्टॉक मार्केट, अदरवाइज तेरे को क्या बोलते हैं मतलब कहीं का नहीं छोड़ेगा, ठीक है, सब पैसा लेके डूबेगा तेरा। Are you getting it? ठीक है, हाँ, अगर तेरे को पता है ना तो तू अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकता है, ठीक है, इस साल मतलब 15% के ऊपर भी कमा सकता है। मेरा टारगेट ये है आपको 15% का ऊपर का रिटर्न लाके देना, ठीक है, क्यों वगैरह सब समझेगा आप, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट कीप इन माइंड, इन्वेस्ट कब करने का, जब तेरा ये 3 नीड फुलफिल हो, ये होने के बाद ही कर, तब तक मत कर। गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट स्कीम्स इन विच वी कैन इन्वेस्ट, ठीक है, एंड विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग दिस अ लॉट, स्टॉक मार्केट, ठीक है। हाँ, म्यूचुअल फंड वगैरह क्यों नहीं करने का वो भी मैं बोलूंगा, डोंट वरी, ठीक है, बट वी विल टॉक अ स्टॉक मार्केट अ लॉट बिकॉज दिस इज व्हाट आवर सब्जेक्ट और आवर टॉपिक इज, ठीक है, आवर कोर्स इज ऑल अबाउट, fine, ठीक है। So here these are the investing options, and yes, we'll be talking about this one, okay। Now just come to the very important sheet which I'm going to share with you people, and trust me, this is very important sheet. Let me just see where it is. Yeah, financial planning sheet. This is very important sheet. Now try to understand. I'm just giving you some concept, and please try to understand properly. If you have any doubt, just raise your hand. अगर possible रहेगा तो mostly I will try कि आपको कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है, बट रहेगा तो भी प्लीज आस्क, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करते हैं ना, ये चीज बताएगा अपने को, ठीक है। समझो अभी ये सब चीज क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज माय शीट विजिबल टू यू? Is it visible to all? Excel sheet? Yeah, okay. Okay. Now let's go for it. It's very important. And don't worry, I'm going to share this sheet with you so that you can also enjoy. ठीक है, अभी क्या है इसमें देखो, कंसेप्ट क्या 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 सीखना है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट। अब ये चीज क्या है, लेट मी जस्ट मेक इट सिंपल। आई एम नॉट वंस अगेन आई टेलिंग यू कि आई एम नॉट गोइंग टू गो डेफिनेशन वाइज, मैं जस्ट फंडा क्लियर वाइज जाऊंगा, मतलब फंडा क्लियर होना चाहिए बस। अपने को किधर एग्जाम नहीं लिखना है, इसका डेफिनेशन लेके मार्क्स नहीं पाना है, अपने को समझना है चीज के, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट, अब ये चीज क्या है, फ्यूचर वैल्यू मींस व्हाट? नाउ लेट्स सपोज मेरे पास अभी फिलहाल तो मेरे पास 1 लाख रुपए, ठीक है, इन 2021 इफ आई एम हैविंग सम 1 लाख अमाउंट, ठीक है। सो वो 1 लाख अमाउंट मतलब लेट्स सपोज आई एम जस्ट परचेसिंग समथिंग बाय यूजिंग दैट 1 लाख अमाउंट, मतलब ये 1 लाख से मैं इतना खरीद सकता हूँ, ये खरीद रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू मींस व्हाट? अगर आफ्टर 10 इयर्स अगर वही चीज मुझे खरीदना है तो मेरे को कितना पैसा लगने वाला है, समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू मेक दिस क्लियर हियर इटसेल्फ, बट उसके बाद भी अगर डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क मी लेटर ऑन, ठीक है। वंस अगेन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट मतलब क्या? एट प्रेजेंट यू आर हैविंग सम अमाउंट, ठीक है, उसका फ्यूचर में वैल्यू कितना है, फ्यूचर में वैल्यू कितना है। जस्ट लेट मी आस्क वन बेसिक क्वेश्चन टू, देन आई विल अंडरस्टैंड आपको कितना समझ है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास अभी 1 लाख रुपीस है, लेट्स सपोज मेरे पास अभी 1 लाख रुपए, 10 साल के बाद वो 1 लाख का प्राइस 1 लाख रहेगा कि उससे कम होगा कि ज्यादा होगा, देन आई विल अंडरस्टैंड हाउ मच यू नो, मतलब हाउ मच यू अंडरस्टैंड द फाइनेंस। पर कम हो जाएगा। वेरी गुड, कम होगा बिकॉज आप देखो ना अपनी लाइफ में 10 इयर्स पहले जो 10 रुपए में मिलता था, अब मिलता है क्या? अब उसके लिए 100 रुपए देना पड़ता है। 10 इयर्स पहले मतलब 58 54 थी मेरे टाइम पे, मैंने यूज किए 50% 25% देना, ठीक है, बट अभी उसका कुछ वैल्यू नहीं, उस वो है ही नहीं, वैल्यू नहीं, छोड़ है ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो फ्यूचर वैल्यू मींस व्हाट? अभी मेरे पास अमाउंट है तो उसका फ्यूचर में उसका प्राइस कितना है, मतलब जस्ट लाइक इफ आई एम परचेसिंग समथिंग एट दिस अमाउंट टुडे, तो वही मुझे 10 साल के बाद अगर मुझे खरीदना तो कितना पैसा लगेगा, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज व्हाई जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर टर्म और दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट यू, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अभी लेट्स सपोज करंटली आपका एक्सपेंसेस कितना है, करंटली आपका एक्सपेंसेस कितना, आपको लाइफस्टाइल जो भी आप लाइफस्टाइल जी रहे हो उसके लिए एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है, अभी कितना खर्चा आ रहा है। एंड अगर मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करे तो मुझे देखना पड़ेगा 10 साल के बाद भी कितना आता है, वो सेम नहीं रहेगा, समझो। बच्चा मतलब बंदे लोग गलती करते हैं कि मतलब अभी जो करंटली एक्सपेंस है उसके साथ से प्लान करते हैं और बाद में समझ आ रहे हैं महंगाई तो बढ़ गई। आर यू गेटिंग इट? सो फॉर दैट पर्पस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट, ठीक है। अभी मेरे पास इतना पैसा, मतलब दिस इज व्हाई इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट, बिकॉज यू मस्ट नो अगर मेरा मंथली एक्सपेंस अभी इतना है तो 10 साल के बाद अगर मुझे यही लाइफस्टाइल जीना है तो मेरे को कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा लगेगा,
You can, and that you must know because people ये थिंक ही नहीं करते, वो आज के हिसाब से ही चलते हैं। हाँ 50,000 कमा रहा हूँ, मुझे 50,000 आना चाहिए, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अरे ना, पहले सोच 3 साल के बाद तो वो सेम रहने वाला है क्या खर्चा? नहीं, इट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान। Are you getting it? ठीक है, अब मैंने ये एक्चुअली शीट बना के रखा है जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर एंड हियर आई गिवन द एक्सप्लेनेशन आल्सो। ठीक है, now what this says is just like what is the value of x amount, that is what you have to enter in E6 column, मतलब यहाँ पे जो एंटर करना है what is the value of x, मतलब जो भी प्रेजेंट है। ठीक है, after so and so year, after that y years, or you may say d6 years। ठीक है, so what is the value of, now what is this, what is the value of 2000 after the 5 years। ठीक है, ठीक है, now what I will say here is that I will just assume the inflation rate। now anyone knows inflation rate कितना है इंडिया में? inflation rate, महंगाई कितना बढ़ते? 6 to 7%। Yeah, 6%। So roughly I will assume 6%। ठीक है, so 6% inflation rate पकड़ के चल। ठीक है, इज अ फ्यूचर वैल्यू, मतलब ये फॉर्मूला आपको बहुत चीजें में काम में आएगा, बट दिस इज व्हाट माय मेन एम। मतलब अभी मेरा खर्चा कितना और 10 साल के बाद मेरे को कितना पैसा लगने वाला है। ठीक है, 10 साल 20 साल तेरे को जो मांगता है डाल दे, तेरे को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, आई एम नॉट शोइंग यू द फॉर्मूलाज एंड ऑल बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाएगा, ये फॉर्मूला वगैरह कैसे है, फ्यूचर वैल्यू वगैरह, डायरेक्टली आप यही यूज करो। ठीक है, बिकॉज वो अपना इंटरेस्ट नहीं है, अपने को मतलब कैसे वैल्यूज आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर्मूला वगैरह चाहिए तो बोलो, मतलब कभी तो एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे, बट इट इज नॉट अवर यू नो ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला कैसा लिखना है वगैरह। ये सीट रेडी बना के देगा तो तू तेरे हिसाब से मस्त कैलकुलेशन करते रहे। ठीक है, या नाउ लेट्स सी, नाउ व्हाट दिस से कि नाउ लेट्स सपोज मेरे पास अभी 2000 रुपीस है, 2000 रुपीस है, समझो समझो 2000 रुपीस है। ठीक है, पीरियड मींस व्हाट, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू वांट टू हैव, उसका प्राइस कितना होगा, मतलब उसके उसी चीज के लेने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम सेइंग 5 इयर्स एंड इन्फ्लेशन, नाउ दिस इज व्हाट द इन्फ्लेशन रेट, मतलब कितना महंगाई बढ़ रहा है तेरा 6% से। ठीक है, मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास अभी 2000 से मैं, मतलब इफ आई एम जस्ट बाइंग समथिंग, अगर 5 साल बाद मुझे वही खरीदना रहेगा तो मुझे 2600 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 5 साल बाद अगर मुझे वही चीज खरीदना है तो 2600 देना पड़ेगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक इफ आई से माय मंथली एक्सपेंस इज 15,000, अगर मेरा मंथली एक्सपेंस 15,000 है। ठीक है, एंड नाउ अरे आया कि नहीं, मंथली एक्सपेंस मेरा 50,000 है अभी, बट 5 साल बाद वो 15,000 नहीं रहने वाला, वो 20,000 होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? गेटिंग इट? ठीक है, बिकॉज दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग इट? ठीक है, नाउ लेट्स सपोज अभी दिस इज फॉर द 5 इयर्स ओनली, लेट्स सपोज आई हैव टू टॉक रिगार्डिंग द 10 इयर्स, सो जस्ट चेंज इट ओवर हियर। गेटिंग? सो मतलब 10 साल के, मतलब जो भी मुझे अभी मंथली एक्सपेंस अगर मेरा 15,000 है, 10 साल के बाद उसी के लिए मेरे को 26,000 लगने वाले हैं। समझो, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट दैट फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट, मतलब आज मेरे पास जितना पैसा है, अगर उसी पैसा, मतलब उसी वही, मतलब उसी पैसे से मुझे जो भी जो चीज तूने खरीदी और जो भी तू मतलब लाइफस्टाइल जी रहे, अगर उसी सेम लाइफस्टाइल मुझे जीना है तो कितना पैसा लगेगा आफ्टर सो एंड सो इयर्स, अगर मेरा इन्फ्लेशन रेट इतना है तो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आफ्टर सम इयर्स मेरे को कितना पैसा लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अमाउंट। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, या फाइन। एंड बाय गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिव, तो मेरे को मजा आता है, मतलब ऐसा इंटरेक्टिव रहेगा। जस्ट डू नॉट बी लाइक हाँ मैं सुनते रहेगा तो बोलते रहेगा ना, मजा नहीं है फिर उसमें। उसमें रिस्पॉन्स देते रहो तो मुझे भी इंथू आता है, मैं भी थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा फिर। ठीक है, या सो दैट्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट। अभी इसका मतलब नाउ दिस फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर एनी योर फिक्स डिपॉजिट एंड ऑल, उसके सबके लिए लागू है। ठीक है, जस्ट लाइक कि मैंने अभी प्रेजेंटली 50,000 भरे, मतलब 50,000 मैंने फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या, एट अ टाइम आपको पैसा देना है और आफ्टर सम टाइम यू हैव टू जस्ट टेक दैट अमाउंट। ठीक है, तो उसके ऊपर जस्ट कितना रिटर्न मिलता है वो डाल दे इधर, लेट्स सपोज 7%, तो उसके लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, सो या लाइक सो अगर तूने 50,000 तूने बैंक में डाल दिया, लेट्स सपोज तेरा एफडी का अगर तेरा रिटर्न है 7% एंड इफ यू जस्ट कीप इट फॉर द 10 इयर्स, तो 10 ईयर के बाद तुझे 98,000 मिलेंगे, मतलब डबल भी नहीं होगा 10 ईयर के बाद। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस कैन बी यूज फॉर योर, मतलब एफडी के ऊपर वगैरह रिटर्न कितना मिलेगा, कितना पैसा डालेगा, कितना मिलेगा, वो सब करके लिए भी यूज कर सकते हैं। बट दिस इज आई विल यूज मेनली फॉर मेरा अभी खर्चा कितना है और बाद में मेरे को कितने लगने वाले। ठीक है, यू कैन यूज इट फॉर मेनी पर्पस, बट यस दिस इज द मेन पर्पस। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट, so this is the future value of amount, this is what we have seen. Fine, next, future value of annuity, try to understand, थोड़ा सा different concept है सब कॉमर्स के, but I want you to understand. ठीक है, अभी future value of annuity, अब ये चीज क्या समझता है आप लोगों को? ठीक है, here I have explained something, here मैंने just explanation भी देके रखा है so that it will be easy for you. ठीक है, what is that, try to understand. If I accumulate x amount मतलब वो जो B7 में मुझे डालना है, B7 किधर, B7 मतलब यहाँ पे डालना है। ठीक है, दिस इज व्हाट पर मंथ अमाउंट,
ठीक है। सो मंथली मुझे इतना एक्यूमुलेट करते जाना है। समझो अभी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी चीज के, एन्युटी मतलब क्या होता है? एनीवन कैन, इफ एनीवन नोस एन्युटी मतलब क्या? ईयर या एन्युटी मतलब ईयर, ठीक है। तो अभी एक्चुअली एन्युटी मतलब इज एक्चुअली ईयर, बट हियर वी कैन कंसीडर वन कांस्टेंट टाइम पीरियड, इज पीरियोडिक, मतलब यू कैन जस्ट कंसीडर पीरियोडिक। पीरियोडिक समझता है ना, आफ्टर सम इक्वल टाइम तो आपको वो इन्वेस्ट करना है, लाइकवाइज, ठीक है। नॉर्मली लोग कॉमर्स फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में एन्युटी बोलते हैं, बट इसका मतलब अपने लिए जस्ट एक टाइम पीरियड समझ। अब इधर टाइम पीरियड मैंने 1 ईयर लिया है, 1 मंथ लिया है, 1 वीक लिया, और तेरे ऊपर है, ठीक है। सो एन्युटी मतलब एक टाइम पीरियड समझ, फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। मोस्टली विल बी यूजिंग 1 मंथ, बट एन्युटी मतलब एक्चुअली 1 ईयर था, बट अपने लिए अपन 1 मंथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो समझो अभी क्या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब क्या होता है, समझो। जस्ट लाइक इफ आई एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, B7 अमाउंट, B7 समझता है, ये B वाला कॉलम है, 7th वाला रो, इतना अमाउंट, मतलब इधर ओ आपको अमाउंट एंटर करना है, ठीक है। सो इफ आई जस्ट एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथ फॉर so and so years, फॉर y years, और दैट इज व्हाट यू हैव टू एंटर इन D7, इतने ईयर के लिए मैंने एक्यूमुलेट करते जाओ, ठीक है। एंड एट अ रिटर्न ऑफ z, मतलब z ये यहाँ पे C7 पे, अगर उसके ऊपर रिटर्न इतना है, ठीक है, देन विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नाउ हियर यू कैन जस्ट हैव दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इनिशियल तुझे कुछ रखना है तो रख सकता है, ठीक है। देन आफ्टर दिस पर्टिकुलर ईयर्स मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, आर यू गेटिंग? आफ्टर दिस पर्टिकुलर ईयर्स मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, समझ में आया? तो वंस अगेन व्हाट्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मींस व्हाट, मंथली इफ आई एम जस्ट एडिंग, मतलब अगर आप कुछ तो मंथली कुछ स्कीम ले रहे हो, कुछ LIC का, कुछ म्यूचुअल फंड का, कुछ भी, ठीक है। तो यू आर इन्वेस्टिंग मंथली इतना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब यू मस्ट नो कितना मिलने वाला है मुझे, ठीक है। अगर इफ आई एम इन्वेस्टिंग मंथली इतना फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, मतलब इतने ईयर के लिए मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, एंड दिस इज व्हाट द रिटर्न आई एम गेटिंग, मतलब इतना रिटर्न मुझे मिलने वाला है, ये एनुअल रिटर्न रहता है मोस्टली, ठीक है, इतना रिटर्न मुझे मिलने वाला है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। एंड इनिशियली ना दिस प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, इनिशियल मतलब मैं कुछ नहीं डाल रहा हूं, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि इनिशियल वो 1 लाख डालते हैं एंड बाद में मंथली SIP चालू करते हैं, ऐसे में मतलब मंथली कितना अमाउंट जाएगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं SIP, ठीक है। सो इनिशियल वैल्यू लेस प्रेजेंट वैल्यू में 0 रख रहा हूं, मतलब इनिशियल में कुछ बड़ा अमाउंट नहीं डाल रहा हूं, जिसमें मंथली 10,000 डालते जाएगा, समझो समझो ये फॉर्मूला, तो ये सब फील्ड्स क्या है समझो आराम से, एंड अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन से कि सर डाउट है, फिर से एक्सप्लेन करो, ठीक है, बिकॉज ये सब फंडा क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर ही सब आगे सब गेम है, ठीक है। समझो वंस अगेन फ्यूचर वाले फाइनेटी मींस वंस अगेन दिस इज द अमाउंट पर मंथ में, अगर इफ आई एम जस्ट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, अगर मैं किसी भी स्कीम में, अदरवाइज म्यूचुअल फंड जो भी तेरा इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन है, अगर उसमें मैं डालते जाऊं, ठीक है, उसका अगर रिटर्न इतना है मंथ ईयरली रिटर्न इतना है, ठीक है। एंड इफ आई एम जस्ट डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट फॉर सो एंड सो ईयर्स, लेट्स से 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड अगर इनिशियली मैंने कुछ नहीं डाला, इनिशियल मतलब 0 रुपीज से मंथली में 10,000 रुपए भरते जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका वैल्यू 20 ईयर्स के बाद कितना होने वाला है, दैट इज व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। मतलब हियर इन दिस केस अगर मैं 10,000 एक्यूमुलेट करते जाऊं फॉर द 20 years at the return of 10%, then I'll be getting at the end of 20 years I'll be getting 75,93,000 something, ठीक है। एंड आपने इन्वेस्ट कितना किया वो भी पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपना इन्वेस्ट जाएगा 24 लाख, ठीक है, दैट इज आल्सो गिवन ओवर हियर, सो एक्चुअली इन्वेस्टेड ओवर हियर एंड दिस इज हाउ मच यू विल बी गेटिंग। तो मैं 24 लाख इन्वेस्ट करेगा 20 years तक, एंड व्हाट आई विल बी गेटिंग आफ्टर 20 years दैट इज गोइंग टू बी 75 लाख, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, मंथली 10,000 रुपीज डालना है, ठीक है। हाँ समटाइम्स इट में हैपन कि मतलब मैं क्या करूँ, अभी इसका मीनिंग क्या होगा समझो, अगर इधर मैंने 1 लाख डाल दिया, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब 10 एनुअल सेक्शन, अभी इसका मीनिंग क्या हुआ अगर मैंने इधर 1 लाख डाल दिया, सर आपने इनिशियली 1 लाख रुपीज ऐसा डाल दिया और उसके बाद मंथली SIP चालू किया 10,000 परफेक्ट, का। यू आर गेटिंग इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी इसका मीनिंग क्या है, मैं 10,000 मंथली तो डाल ही रहे, मैं डालेगा वो तो मेरे अकाउंट से कट रहेगा, ठीक है, बट इनिशियली मैंने 1 लाख लमसम अमाउंट डाल के रखा है, समझो उससे देखो फर्क कितना पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है बॉस, ठीक है। अगर मैंने लमसम अमाउंट 1 लाख डाल दिया एंड उसके बाद मैंने मंथली 10,000 चालू किया, समझो समझो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनेंस, दिस इज ऑल द कंपाउंडिंग एंड ऑल, कीप इन माइंड गाइस, कंपाउंडिंग इज रियली अ वंडर, रियली अ वंडर, रियली अ वंडर, ठीक है। सो नाउ दिस इज द 10,000, ठीक है, इनिशियल आई विल जस्ट मेक इट 0 वंस अगेन, या सो इफ इट इज अ 10,000, कुछ प्रॉब्लम हो गया या नहीं, राइट है, इधर कॉमा इधर आ गया, ठीक है, या 10,000 दिस इज द रिटर्न, दिस इज फॉर द 20 years मैंने मतलब कर रहा हूँ, अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू मतलब इनिशियल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरे को 75 लाख मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। बट गलती से अगर मेरे पास पैसा है, मुझे लॉटरी लगी किधर से तो मेरे को पैसा मिला, मैंने इनिशियली 1 लाख डाल दिया, समझे, मैंने उधर ही डाल दिया, समझो, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इनिशियल तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को मिलेगा 83,26,049 एंड ऑल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा इन्वेस्ट 25 होगा पर मुझे मिलेगा 83 लाख,
Are you getting it? समझ में आ रहा है? ठीक है. So this is how that this particular column can be used. ठीक है. अब ये किससे लेना है? सिंपल. अगर मैं मंथली कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना मुझे रिटर्न आ रहा है, इतने साल के लिए मैं चालू रखने वाला, तो मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है. To know this particular field is there. ठीक है. So this is called the future value of annuity. Future value of annuity. ठीक है. Understood? Is that clear to all? Yes sir. Yes sir. Okay. Yeah. Fine. Good. ठीक है. Yeah. Now next one. Now next these two terms are something new and try to understand. Present value. अभी present value क्या होता है? ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू मतलब कैसा? अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है पता है, अगर ये मतलब मैंने देखा, अरे मैं 10,000 इन्वेस्ट करते जाओ, 20 इयर्स के बाद मेरे को 83 लाख मिलेगा, अपन तो सोचा अरे बाप रे मस्त अमाउंट मिलने वाला है. ठीक है. बट तेरे को ये पता होना चाहिए 83 लाख मिलेगा तो ठीक है, बट वो 20 इयर्स के बाद तो उसका आज वैल्यू कितना है. ठीक है. यू से तो मतलब नॉर्मली मतलब जो भी स्कीम वाले वगैरह आपने को एड़ा बनाते हैं, अरे तेरे को 20 साल के बाद 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा, बट ठीक है, बट 20 साल के बाद 2 करोड़ का वैल्यू क्या रहेगा बॉस? वो तो बता मेरे को. Are you getting it? ठीक है. This is also important because जो स्कीम वाले आते हैं वो जस्ट बोलते हैं इतना 2 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़, अपन लाइक अरे बहुत ज्यादा पैसा है, चल डाल दे इधर, अरे एड़ा बन जाते हैं अपन. ठीक है. बट उसको तेरे को पता होना चाहिए उसका प्रेजेंट आज में वैल्यू कितना है. मतलब अगर इफ आई एम बाइंग समथिंग आफ्टर 20 इयर्स 1 करोड़ में अगर मैं ले रहा हूँ, तो मुझे आज वो लेने को कितना पैसा लगेगा, मतलब तुझे एक्चुअल वैल्यू समझेगा, मतलब कितना पैसा मेरे को मिल रहा है. Are you getting it? ठीक है. So that is called the present value. तो present value मतलब क्या? If you are getting some amount after some year, ठीक है, तो उसका प्रेजेंट मतलब एक्चुअल आज में वैल्यू कितना है. ठीक है. अगर मुझे 10 साल के बाद 1 करोड़ मिलने वाला है, तो आज 1 करोड़ में जितना होता है उतना 1 करोड़ में नहीं मिलने वाला है वो, तो उसका 1 करोड़ का वैल्यू आज कितना है, सो दैट यू कैन रियलाइज उसका पोटेंशियल कितना है. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो दैट इज व्हाट द प्रेजेंट वैल्यू, जो भी फ्यूचर में मिलने वाला उसका आज प्राइस क्या है. ठीक है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड. ठीक है. हियर आई एम गोइंग टू गेट, मतलब इफ आई एम गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट x, जैसे F9 में एंटर करना है अपने को. ठीक है. If this is the amount which I am going to get after so and so year, so what is the today value of what is this today's value? आज वैल्यू कितना है? समझ में आ रहा है? ठीक है. तो आपको जस्ट इधर एंटर करना है और उसका आपको इधर वैल्यू मिलेगा. ठीक है. तो फॉर द चेकिंग पर्पस आई विल जस्ट डू इट ओवर हियर. लेट्स सी. लेट्स सपोज आई विल मेक इट 10. लेट्स सपोज आई विल मेक इट 5 and let's suppose here I will make it 2000. ठीक है. So what is sale now? Future value of amount मतलब क्या? अगर मैंने 2000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, 10% के रेट पे 5 इयर्स के लिए, तो मुझे कितना मिलने वाला है? तो मतलब 3220, मतलब इसका सॉरी या वैसे भी है. एंड 2000 का 5 इयर्स के बाद वैल्यू कितना रहेगा? अगर मतलब ले सो मैंने इन्फ्लेशन 10% पकड़ा तो 3000 रुपीज. ठीक है. मतलब जो भी चीज मैं अभी 2000 में ले रहा हूँ, अगर मेरा इन्फ्लेशन 10% है, तो मुझे उसके सेम चीज 5 इयर्स के बाद लेने के लिए मुझे 3221 रुपीज पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो लाइक अभी उल्टा करते हैं, मतलब अगर ये फ्यूचर वैल्यू है तो मतलब आज के रेट में उसका वैल्यू कितना है. ठीक है. सो दैट अमाउंट यू हैव टू एंटर ओवर हियर करने को देता है ना. ठीक है. सो हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द पुट इन 3321. ठीक है. सो यू विल बी गेटिंग दिस 2000. तो मतलब अगर 3000 आपको 5 इयर्स के बाद मिलने वाला है, 5 इयर्स के बाद एट दिस पर्टिकुलर रेट पे, तो आज उसका वैल्यू कितना है. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट डू फॉर द कंफर्मेशन की सब बराबर चला गया. जैसे मैंने 5000 एंटर किया, सो 5000 का अगर मैंने सपोज 5 इयर्स के बाद मतलब 10% है, तो मुझे इतना अमाउंट लगने वाला है 8000. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज आई विल जस्ट एंटर दिस अमाउंट ओवर हियर, सो दैट वी विल जस्ट कंफर्म कि फॉर्मूला बराबर चल रहा है कि नहीं. बिकॉज ये रिवर्स कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग करते ही नहीं. या सो इज सेइंग नियर अबाउट 5000. समझ में आ रहा है? ठीक है. व्हाई आई एम सेइंग दिस वन? बिकॉज समवन, अगर आपके घर पे कोई स्कीम वाले वगैरह आते, हर एक के घर में कोई ना कोई तो आता, मतलब कुछ रिलेटिव रेफरेंस से तो आते ही है कि इधर इन्वेस्ट कर, उधर इन्वेस्ट कर. ठीक है. और बोलेंगे इतना साल बाद तेरे को इतना मिलेगा, तो क्या करने का? बोलेगा ठीक है चल मिलेगा ना, रुक मेरे को देखने तो क्या बोल रहा है. ठीक है. तो वो अमाउंट इधर डालने का. फाइन. देन उसके बाद वो टाइम पीरियड भी इधर डालने का, और वो कितने रेट से बढ़ा वो इधर डालने का. मतलब अपने जस्ट नॉर्मली पुट इन्फ्लेशन रेट ओवर हियर. ठीक है. सो दैट यू विल अंडरस्टैंड जो भी मुझे अमाउंट मिलने वाला है बाद में, उसका आज में वैल्यू क्या है. बिकॉज अगर समवन इज सेइंग कि तुझे आफ्टर 10 इयर्स यू विल बी गेटिंग 2 करोड़ और उसका वैल्यू अगर 20 लाख है, तो वो कुछ नहीं है बॉस. समझ में आ रहा है क्या? दैट इज व्हाट यू रियलाइज. ठीक है. समवन इज सेइंग आफ्टर 20 इयर्स यू विल बी गेटिंग 2 करोड़. अरे 20 इयर्स के बाद 2 करोड़ का वैल्यू भी क्या रहने वाला है बॉस? समझ में? तो उसका आज का वैल्यू क्या 20 लाख ही रहेगा, तो मतलब कुछ मजा नहीं है उसमें. ठीक है. आज तेरे को लग रहा है 2 करोड़ बहुत ज्यादा है, बट 20 इयर्स के बाद 2 करोड़ कुछ नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो फॉर दैट यू मस्ट नो उसका आज में वैल्यू क्या है. वैसे स्कीम वाला रहता है ना, अपने को ऐसे ही एड़ा मारता है, बड़ा बड़ा अमाउंट दिखाता है, अपन लाइक हाँ क्या भारी है, बट नहीं वो भारी नहीं रहता. उसको देखने का असल में एक्चुअल में आज में वैल्यू क्या है. ठीक है. मतलब जो भी मुझे बाद में मिला उसका आज में वैल्यू क्या है, इज इट रियली अ गुड अमाउंट और नॉट, वो मुझे रियलाइज होना चाहिए. तो उसके लिए ये चीज़ है. समझ में आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी.
सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, अंडरस्टूड दिस वन, प्रेजेंट वैल्यू, यस सर, ठीक है। नाउ द लास्ट वन व्हिच इज वेरी यस वेरी गुड, कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल। आई विल जस्ट कम टू द पूल, if any doubt then you can ask, any doubt so far? Don't worry guys, I will be going very slow because मुझे पता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके फाइन, या उसके बाद अभी ये लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, ठीक है। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अभी ट्राई टू गेस ये चीज क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ट्राई टू गेस एक चीज क्या रहेगा सर। सेम चीज वही पीरियड के लिए। बोलो बोलो तो जस्ट एलैबोरेट करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या रहेगा। जैसे अभी प्रेजेंट वैल्यू हम लोग ने समझा ना कि इतने साल बाद उसका एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगा करके, तो वैसे ही ये एक पर्टिकुलर ईयर्स के लिए करते गए तो कितना इफेक्ट होएगा ऐसा पर्टिकुलर टाइम। ठीक है चलो, एनीवन एल्स, यस एनीवन एल्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एनीवन जस्ट वांट टू गेस ऑन दिस वन बिकॉज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सर बेसिकली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का रिवर्स ऐसा। हाँ रिवर्स मतलब कैसे, मतलब वो इतना एग्जैक्ट रिवर्स नहीं है, थोड़ा सा है उल्टा सुल्टा। हाँ रिवर्स मतलब बोलो, रिवर्स मतलब वो नहीं सर, जाने दो जा। चल ठीक है, कुछ वादा नहीं, कुछ वादा नहीं, कुछ वादा नहीं, कुछ वादा नहीं, कंफ्यूजन मत करो, ठीक है। अभी समझो क्या चीज है, समझो अभी इधर मैंने लिखा है, लेट्स सी, ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज किधर वो यूज करने वाला मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे बट एकदम सब कॉन्क्रीट करेंगे अपन, एकदम ऐसा कि यार कोई उल्लू नहीं बना सकता, ठीक है। एंड यू मस्ट गेट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, ठीक है। इफ आई वांट टू गेट एक्स अमाउंट, मतलब B10, B10 मतलब ये वाला, अगर मुझे इतना अमाउंट चाहिए पर मंथ, पर मंथ, ये अपना सब कैलकुलेशन होता है पेंशन के लिए, मतलब अगर रिटायर होने के बाद मेरे को अगर चाहिए तो उसके लिए ये सब यूज होगा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस, इफ आई वांट टू गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथ, ठीक है, मतलब ये इतना अमाउंट मुझे चाहिए पर मंथ फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स मुझे, मतलब नाउ दिस पर्टिकुलर ईयर्स दैट वाई ईयर्स दैट इज इन डिटेल, ठीक है। मतलब मुझे क्या, मुझे हर महीने 10,000 रुपए मिलते रहे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मुझे 10,000 हर महीने मिलते रहे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है, ड्यूरेशन। देन हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट नाउ, और हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट नाउ, और व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ इट। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, अगर मुझे 10,000 पर मंथ चाहिए, पर मंथ चाहिए नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, तो मुझे अभी कितना पैसा डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अगर मैंने इतना पैसा डाल दिया इतने रेट पे, मतलब इतना रिटर्न पे, 10% रिटर्न पे, ठीक है, तो मुझे हर मंथ मतलब ये पैसे से मैं मतलब 10,000 रुपीज निकाल सकता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर 20 ईयर्स तेरे पास 0 रुपीज बचेगा। समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेशन। मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मुझे इतना पैसा चाहिए फ्यूचर में तो मेरे को कितना अमाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो अभी ये चीज के कि अगर मुझे इतना अमाउंट चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए पर मंथ, ठीक है, इतने ईयर्स के लिए, तो मेरे को कितना, ये प्रेजेंट में कितना अमाउंट डालूं बैंक में, नहीं तो किसी भी स्कीम में इतने पर्टिकुलर रिटर्न पे, सो दैट मुझे इतना अमाउंट मिलता रहे, दैट इज व्हाट इट मींस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे सर ये तो 10,000 है, अपन 20 ईयर्स के लिए अगर मैं कैलकुलेट करने बैठेगा तो 10,000 पर मंथ बोले तो साल का हो गया 1,20,000 एंड 20 ईयर्स का हो गया समथिंग 24 का समथिंग, और तू अब इतना सही बोल रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू से, ठीक है। बिकॉज़ इफ आई जस्ट से कि मतलब 10,000 मुझे पर मंथ मिलना चाहिए 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। मतलब इफ आई जस्ट डू द कैलकुलेशंस ओवर हियर कि लेट्स सपोज इफ आई डू या 10,000 पर मंथ मुझे चाहिए, ठीक है। 20,000 पर मंथ मतलब साल का हो गया इंटू 12, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द 20 ईयर्स, मतलब इंटू 20, मतलब अमाउंट हो गया, जस्ट एक्सपांड दिस वन, इतना अमाउंट 24 लाख मुझे रखना चाहिए, बट आप बोल रहे हो सर 10 लाख ही रखो। सो इज इट राइट और रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक। सर राइट है, बट उस पे इंटरेस्ट भी लग रहा है ना। यस परफेक्ट, ठीक है। इट्स नॉट कि मतलब जो 24 लाख लग रहा है, अरे भाई तू पैसा जो भी डालेगा उसके ऊपर पैसा बढ़ेगा भी तो सही, you'll be getting some return, that is what this 10% is over here. Try to understand the finance. It's not कि मतलब इतना पैसा डालना पड़ेगा तो मैं इतना, अरे इतना पैसा डालेगा तो तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है उसके ऊपर, ऐसा तो अज्यूम कर। मतलब 24 लाख तूने घर पे रखा है और उसमें से तू हर महीना 10,000 निकाल रहा है, तो तेरे को मतलब इतना लाना पड़ेगा इफ यू वांट टू हैव दैट 10,000 फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, ठीक है। बट इफ यू पुट इन सम स्कीम व्हिच इज एक्चुअली गिविंग यू द 10%, तो तुझे इतना ही डालना पड़ेगा, समझो। तो इसका मीनिंग क्या है, नाउ दिस इज द अमाउंट व्हिच आई हैव टू इन्वेस्ट
currently, so that after 20 years, sorry, for the next 20 years I can withdraw 10,000 per month अगर मुझे ये अमाउंट पे इतना रिटर्न मिल रहा है तो, ठीक है. So that is for the present value of annuity. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब क्या, अगर मुझे इतना अमाउंट चाहिए पर मंथ, इतना अमाउंट चाहिए पर मंथ, ठीक है, इतने ईयर्स के लिए, तो मुझे आज कितना पैसा डालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. समझ में आ रहा है, अगर हर मंथ में अगर मुझे इतना चाहिए तो आज कितना पैसा डालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? समझा है पक्का? यस सर. Yes. Okay. Yes, sir. Fine. ठीक है, good one. Sir, This can is you- what we understood. Yeah, for बोल. ये लास्ट वाला रिपीट कर सकते हो क्या? Yeah, okay. Once again, no problem. Because ये थोड़ा सा confusing है. Present value of annuity, ठीक है. Future value of annuity अपन ने देखा. Future value of annuity क्या था? It's just like अगर मैं 10,000 रुपीज पर मंथ accumulate करते जाऊं इतने years के लिए, ठीक है, अगर ये उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे आफ्टर 20 years कितना मिलेगा, दैट इज व्हाट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब क्या, उल्टा. उल्टा तो थोड़ा सा अलग है. इट्स जस्ट लाइक कि अगर मुझे नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए, मतलब आज से नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए मुझे पर मंथ 10,000 रुपीज चाहिए, पर मंथ 10,000 रुपीज चाहिए, ठीक है, तो मैं आज कितना इन्वेस्ट करूं इतने रिटर्न पे तो मुझे इतना मिलेगा अमाउंट, 10,000 पर मंथ मिलते जाएगा. समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. ठीक है, मतलब नेक्स्ट फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए मुझे हर मंथ इतना अगर पैसा चाहिए तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड वो पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर मुझे इतना अगर रिटर्न है तो. समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू हैव 20,000 पर मंथ, सॉरी 20,000 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स, देन यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट दिस मच, मतलब इतना तुझे अमाउंट डालना पड़ेगा, 20,78,000 इतना अमाउंट डालना पड़ेगा इतने रिटर्न के लिए, तब जाके तुझे हर वक्त, मतलब नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए तो हर महीने 20,000 निकाल सकता है, एंड 20 इयर्स के बाद तेरे को 0 रुपीज बचेगा. समझ में? 20 इयर्स के बाद तेरे अकाउंट में 0 रुपीज रहेगा. ठीक है, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एंड दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसका अपन यूज फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज करेंगे. ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन वंस अगेन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अमाउंट, मतलब आज मेरे पास कितना पैसा है, इतने पैसे से, मगर इफ आई एम जस्ट बाइंग दिस मच, तो नेक्स्ट आफ्टर 10 इयर्स मुझे कितना लगेगा वही चीज सेम बाय करने के लिए. ठीक है, तो दिस विल बी यूजिंग, अगर आज मेरा मतलब लेट्स सपोज मंथली खर्चा इतना 20,000, तो अगर आफ्टर 20 इयर्स मेरा खर्चा कितना होने वाला है, मतलब कितना, मतलब इफ आई टू जस्ट सर्वाइव द सेम लाइफस्टाइल तो मेरे को कितना अमाउंट लगने वाला है, उसके लिए अपन ये यूज करेंगे. इसका यूज बहुत सारा है, तो जैसे मैं बोला कि इतना अमाउंट मैंने इतने टाइम के लिए इतने रिटर्न के लिए छोड़ दिया तो मेरे को कितना मिलेगा, वो भी कर सकते हैं, बट मैंने अपना पर्पस बता दिया. ठीक है, देन just pick up later on. Yeah, then future value of annuity. Future value of annuity मतलब जो भी स्कीम रहते हैं अपना कि इतना इतना पैसा डालते जाओ, इतने इतने ईयर्स के लिए इतना रिटर्न रहेगा, तो कितना मिलने वाला है वो उसके लिए ये है. ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब अगर इफ आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथ फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड अगर उसका रिटर्न इतना है, ठीक है, एंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब मैं इनिशियली कुछ अमाउंट डाल रहा हूँ कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. अगर मैंने कुछ नहीं डाला तो 0 डालने का इधर. ठीक है, तो कितना अमाउंट मुझे 20 ईयर्स के बाद मिलेगा. Fine. So this is what is the future value of annuity. ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं अपन, पता है कि ये जो फ्यूचर वाले, मतलब जो भी आपका स्कीम वाले बोलते हैं ना कि हाँ इतने इतना डालो आपको इतने ईयर्स के बाद इतना मिलेगा, तो फिर क्या करेगा, जो भी अमाउंट मिल रहा है ना उसको इधर डाल देने का, प्रेजेंट वैल्यू ये वाले फॉर्मूला में, ये इज द फ्यूचर वैल्यू में. ठीक है, तो आपने को उसका प्रेजेंट वैल्यू समझेगा, मतलब वो कितना एड़ा बना रहा है समझेगा. मतलब अगर वो बोला है कि 20 ईयर्स के बाद आपको 2 करोड़ मिलेगा, तो ये 2 करोड़ इधर डालेगा प्रेजेंट वैल्यू के इधर, यहाँ पे फ्यूचर वाले केस में. ठीक है, सो दैट उसका आज के डेट का वैल्यू मिलेगा, कितना पैसा एक्चुअल में है वो. समझ में ना? ठीक है, तो जो भी स्कीम वाला था वो भी बोलता है इतने इसके बाद इतने मिलेगा, उसका बोलेगा रुक भाई थोड़ा मुझे भी कैलकुलेशन करने दे, तो कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है. ठीक है, तो वो वैल्यू इधर डालेगा, तो उसको बोलेगा भाई तू अगर 2 करोड़ बाद मतलब 20 साल बाद बोल रहा है, उसका आज का वैल्यू तो 2 लाख ही है, तो मतलब क्या उसका, हाँ अगर मेरे को 200 करोड़ मिलता तो कुछ बनता था. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव इन दिस प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, एज आई टोल्ड कि दिस इज व्हाट, अगर मतलब दिस इज द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में इफ यू आर गेटिंग सम पर्टिकुलर अमाउंट आफ्टर सो एंड सो इयर्स विद दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट ऑफ व्हाट आर द रिटर्न, तो उसका आज का वैल्यू क्या है, आज का वैल्यू क्या है, आज का वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, फ्यूचर में जो भी मुझे पैसा है ना उसके लिए मुझे आज कितना चाहिए, मतलब कितना आज के डेट में वो वैल्यू कितना है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब इन दोनों का रिवर्स ही एक्चुअली, एंड दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, रिवर्स भी होना चाहिए अपने पास. ठीक है, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब क्या, अगर मुझे नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर्स के लिए अगर मैं मंथली आई वांट टू हैव दिस पर्टिकुलर अमाउंट, इतना मुझे ड्रॉ करना, मतलब ये विड्रॉ करना है ये पर्टिकुलर रिटर्न पे, तो आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट आई विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर मंथली. समझ में आ रहा है? सो दिस आर द कंसेप्ट व्हिच यू आर लर्न टुडे. एनी डाउट टू यू so far? I will just come back to you.
This is all regarding today's lecture. We'll be going very slow, don't worry, because I want you to understand each and everything, and because यहाँ पे 150 people है, तो फिर मैं थोड़ा slow ही जाऊँगा, because सबको समझे and everyone will enjoy. And that's my guarantee, people. After this course, you will find सारा कुछ तो worth attend किया अपन ने. ठीक है? Any doubt? No sir. Yeah. No doubt. कौन सी वो लड़की जिसको मैंने काम बोला था? भूल गया यार मैं, गाइस मैं भूलता वो था, मेरे को याद कराना, बिकॉज आई जस्ट मतलब शॉर्ट टर्म में मेरा लॉस है अपना. या किसको बोला था मैंने अटेंडेंस वगैरह के लिए? यस सर, इट वाज आई फॉरगॉट दैट गर्ल का नेम. खुशी ना? या खुशी, ये तेरा काम है कि मुझे लेक्चर में कभी भी जस्ट रिमाइंड मी टू डाउनलोड द अटेंडेंस एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लेक्चर के साथ में. ठीक है, आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ दैट्स फॉर टुडे. या एनी डाउट?